Kathik is back with another new episode, but this time it's going to be a special one because in this episode we are going to explore the art from heaven's land, the Valley of Paradise, Kashmir, and its intricate art of Kani shawls. Well, speaking about this art, ये कला कश्मीर की वादियों जितनी पुरानी मानी जाती है, as old as the hills of Kashmir. Do you know that the word shal is actually a Persian word which means a garment usually worn on shoulders. The traditional and intricate art of Pashmina weaving is considered as one of the most ancient crafts of India. In fact, there are references found in Hindu scriptures which point to its great antiquity. During the Epic Age, this industry is said to have firmly established in the Kashmir Valley. Tradition has it that when Krishna went to Kauravas as a delegate from the Pandavas, the present of Dhritarashtra to him included 10,000 shawls of Kashmir Pashmina. According to a Mughal chronicle, there were 200 factories for making shawls and were exported to various countries of the world. The shawl of Kashmir were given the name of Parannaram by Emperor Akbar. Jahangir said that they were so excellent that there is no need to praise them. Hajar ba tarif nahi. He also made shawls, one of favorite component of his dress. Well now, as we already know little history regarding this ancient art, but apart from that, we must also know that this shawl industry progressed and thrived as a result of enormous export demand from France and other European countries when Napoleon first gifted his wife an intricate Pashmina shawl when he visited India. Shawl had become a symbol of prestige and an article of distinction in well-to-do families of Europe and the kings and queens, the prince and the princesses of both East and West. A shawl was sold even at a fabulous price of rupees 12,000 in those days. But why are the shawls sold so costly is what every one of us would eagerly like to know. Well, speaking about that, we came to know that the process of making these shawls is a difficult one, starting with a fiber. Fiber obtained from a goat named Changra in Ladakh, which is the only place where these weavers get the fabric for weaving Pashmina. We came across the fact that after 1 kg of Pashmina was being shredded from the goat, it's just 300 grams of fine fiber that is collected for making these shawls, which is totally astonishing. Threads produced from this fiber are considered as one of the finest quality in the entire world. A weaver usually takes an entire day to weave just an inch of his shawl. Almost 3 to 36 months are being utilized to weave a single Pashmina shawl. Lots of patience and hard work goes into making these shawls. Weavers say that they gift a piece of their heart whenever a handmade Pashmina is being sold. Kathik, in collaboration with Mr. Nishchal Sharma, a textile designer and a student of Masters from Sir J.D. School of Art, we feel lucky enough to interact with one of the master craftsmen from Srinagar, Kashmir, whose family has been practicing this tradition of Pashmina Kani weaving for many generations now. Let's meet Mr. Majid Ahmad Mir, a national and state award winner who has also won a gold medal for excellence in arts and crafts. We will be interacting and knowing more about this tradition of weaving Pashmina Kani along with a tour of his workshop and see what recently is being weaved. Also, we will be getting a chance to have a look at some of his traditional and contemporary works made by him and his family. I'm very thankful to you that you have invited me. हाँ, मैं बाय प्रोफेशन में एक वीवर हूँ, तो मुझे बहुत सारे अवार्ड्स में वीविंग में मिले हैं. मेरे पिताजी को भी मिले हैं, मेरे भाइयों को भी मिले हैं. हम लोगों की स्पेशलाइजेशन है वो पश्मीना वीविंग है. हम लोग पश्मीना वीविंग प्लेन बनाते हैं, रिवर्सिबल बनाते हैं, एकत वीव बनाते हैं और कानी वीविंग करते हैं. कानी वीविंग का बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. ये यहाँ पे 700 साल पहले आया था यहाँ पे कानी की वीविंग.
तो तब ये सेंट्रल एशिया से आया था। तो ये उस टाइम उस आर्टिसंस भी, ये मीर सैयद अली हमदानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ही लाया था यहाँ पे। तो उनके साथ बहुत सारे आर्टिसंस भी थे, जैसे कानी वीविंग के थे, पेपर मैशी के थे, वुड कार्विंग के थे, कारपेट वीवर थे, और भी बहुत सारी चीज़ों के थे। और उनमें से भी बहुत सारी चीज़ एलिमिनेटिव हुए, ख़त्म भी हुए। इसी में वीविंग भी एक आर्ट था, वो वहाँ से ही आया। वीविंग तो बहुत पहले यहाँ पे होती थी, क्योंकि वीविंग एक एंशंट आर्ट है, ये हर एक जगह पे होती थी। जैसे कि यहाँ पे भी वीविंग होती थी, मगर कानी का काम नहीं होता था। कानी का काम सेंट्रल एशिया से आया 700 साल पहले। हमारी फैमिली इसमें बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली है कानी वीविंग में। हम बहुत पुराने हैं इसमें। ये बीच आफ्टर 60s ये बिल्कुल ख़त्म ही हुआ था, मार्केट में रहा ही नहीं था। तो इसका या मार्केट भी नहीं कुछ इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, तो फिर ये धीरे धीरे ख़त्म ही हुआ। अब फिर कुछ लोगों के पास ये बचा हुआ था ये आर्ट। फिर 90s में फिर रिवाइव हो गया। जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर को एक काम आता था, हमने उन्हीं से सीखा। हमारे फादर को भी आता था, तो फिर हमने ये कहानी का काम उन्हीं से सीखा। वीविंग वगैरह तो हम लोग करते ही थे। तो फिर जब ये फिर से इंट्रोड्यूस हो गया, तो फिर हमने फिर ये काम किया। फिर थोड़ा सा इसका मार्केट भी बन गया, और फिर बहुत सारे लोगों ने ये काम सीखा भी, हज़ारों लोगों ने ये काम सीखा। तो फिर अब ऐसा इसका ये भी ये पोजीशन रही है कि वापस ऐसे ही डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इसका मार्केट की प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसमें व्यूअर्स को वेजेस अच्छे नहीं मिलते, तो इसलिए बहुत सारे व्यूअर अभी काम छोड़ रहे हैं। मगर स्टिल हम अभी भी ये काम कर रहे हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें रिवाइव किए हैं, नेचुरल डाइज बना रहे हैं इसमें। और मतलब पुराने जो डिज़ाइंस वगैरह थे वो रिवाइव कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमने इन्वेंशन भी इसमें किया है। मैं भी कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा। हमने इसमें उर्दू कैलीग्राफी का इंट्रोड्यूस की। उर्दू कैलीग्राफी पहले ज़माने में होता नहीं था, तो हमने उर्दू कैलीग्राफी भी इसमें किया है। मतलब वो एक नया सा एक इन्वेंशन लाया है। टेक्निक वही है, कानी वीविंग है वो भी, मगर जो एक ये नया इन्वेंशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें उर्दू राइटिंग है। ये संत कबीर का दोहा इसमें लिखा है, कल करे सो आज करे सो कल, पल में परली हो गए बोरी करेगी। ये कहानी भी होती है। ये एक डिज़ाइन हमने अर्ली 18th सेंचुरी का डिज़ाइन है, हमने रिवाइव किया है ये भी में। ये जो भी मैं आपको कह रहा था ना, ये नया एक इंट्रोडक्शन है उर्दू कैलीग्राफी। ये देखिए कहानी की वीविंग है, ये इसमें भी उर्दू कैलीग्राफी लिखी हुई है। उर्दू कैलीग्राफी प्लस में रियल जरी का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो मैं भी कह रहा था आपको, हम इकतवी भी कर रहे हैं। ये सिंगल इकतवी हम करते हैं। लोग सिंगल इकतवी यहाँ पे बना पाते हैं, डबल इकतवी यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि पश्मीना को धागा जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है। हाँ, अच्छा। मैं अभी आपको लूम भी दिखाऊंगा। ये इसमें लिखा कबीरा खड़ा बाजार में, इस वाले स्टॉल में, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। ये देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये मिक्स है। ये जो एम्ब्रॉयडरी की हुई इसको बोलते हैं सोजी एम्ब्रॉयडरी। ये अभी जो हम बना रहे हैं सिंगल इकट्ठी। इसमें प्लेन पे फिर कोई एम्ब्रॉयडरी भी करता है, कोई फिर इसमें एक और काम होता है आरी वर्क। कोई आरी वर्क का काम करता है, मगर वो पश्मीना पे आरी वर्क का काम नहीं होता है। हमने इसमें बहुत सारी मतलब इन्वेंशंस की है कहानी वीविंग में, तो इसमें हमको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे मैं आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पिताजी को संत कबीर अवार्ड मिला है, मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, मेरे भाई को भी नेशनल अवार्ड मिला है, मेरे एक और भाई उनको भी नेशनल अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड्स मिले हैं।
अवार्ड्स बहुत सारे मिले हुए हैं। इसी में हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवाइव किए हैं, तो इसी बारे में अवार्ड्स मिले और बहुत सारे मतलब नए किस्म के प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए हैं, नेचुरल डायर्स बनाए हैं। और हमारा एक और चीज़ है, हम लोग पहले हैंड स्पिनिंग होती थी, अब मिल स्पिन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर 95% से ज़्यादा लोग मिल स्पिन इस्तेमाल करते हैं। वो मिल स्पिन भी पश्मीना ही होता है, मगर वो मैकेनिकल मशीन पे काटा जाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी भी हैंड स्पिन इस्तेमाल करते हैं। वो चरखे से काटते हैं, उसके बाद उसकी मतलब जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो करते हैं। उसका एक और फिर उसके बाद उसका एक टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है। एक सरकारी यहाँ पे लैब है, वहाँ पे टेस्ट होता है। फिर जब वो उस लैब का क्राइटेरिया ये है कि उसमें हैंड स्पिन होना चाहिए, हैंड वोन होना चाहिए। उसके बाद उसके एक लेवल लगती है जिसको बोलते हैं जीए मार्क। मैं वो जीए मार्क भी आपको अभी दिखाता हूँ। जीए मार्क लगता है, ये देखिए, इस स्टैम्प का मतलब ये है कि ये हैंड वोन है, ये हैंड कॉम्ड है और ये हैंड स्पन है। पश्मीना जो इस्तेमाल किया है, ये पश्मीना हमने पहले हाथ से काटा है चरखे पे, उसके बाद ये हाथ से बना हुआ है। ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क है, मगर इसका एक क्राइटेरिया पहले ये बनता है कि इसका ये हैंड स्पन नहीं होना चाहिए। और ये कानी विविंग ही था। हाँ, ये कानी वीविंग था। ये प्लेन पश्मीना पे भी लगता है, ये कानी वीविंग पे भी लगता है, मगर इसका क्राइटेरिया ये है कि ये हैंड स्पिन होना चाहिए। हैंड स्पिन कंपलसरी। अगर ये हैंड स्पिन नहीं हुआ तो लैब में ये इसका टेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम मिल स्पिन करेंगे, मिल स्पिन का टेस्ट हो जाएगा, मगर मिल स्पिन पे स्टैम्प नहीं लगेगी, क्योंकि मिल स्पिन होता है वो मशीन पे काटा जाता है, उसके बाद वो भी हैंड से वो वन होता है, वो भी हैंडलूम पे बनता है, मगर उससे स्टैम्प नहीं लगती है। जी, इसमें कुछ कॉस्ट का भी फर्क होता होगा दोनों में। हाँ, इसमें कॉस्ट का भी फर्क होता है। सपोज अगर ये इसका स्टॉल 8,500 रुपये का है, तो मिल्सपन का स्टॉल वही होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5। इसमें मतलब 50% का फ़र्क होता है मिल्सपन और हैंडसपन में फ़र्क, क्योंकि हाथ से काटा जो जाता है उसमें समय लगता है बनाने में। मिल्सपन जो काटते हैं पहले वो उसमें नायलॉन मिक्स करके फिर उसको कार्बोनाइज करते हैं, तो उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं रहती है, ज़्यादा देर वो चलता भी नहीं। मैं अभी आपको लूम भी दिखाता हूँ, जैसे मेरे भाई अभी लूम पे काम करते हैं। हेलो सर। हाँ, हेलो सर। काउंट इसका होता है मैम, जैसे हमारा पश्मीना जो है मतलब 180 काउंट, मतलब 200 काउंट भी होता है, जैसे मतलब बहुत बारीक काउंट होता है हमारा। सर अभी आप क्या वीव कर रहे हैं? प्लेन पश्मीना है या कोई मोटिव्स आप डालने वाले हैं? ये बना रहे हैं, इकत बना रहे हैं, सिंगल ओके। तो सर ये सिंपल इकत में भी आप लोग जो नेचुरल डाई है उसका ही यूज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नेचुरल डाई है, नेचुरल डाई का नहीं सफेद। तो सर इसमें कितना टाइम लगता है आपको पूरा स्टार्ट से, जब आप ये दूसरे बॉय जो मेरे ये बना रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। एक साइड से इसका दूसरा कलर है, एक साइड से देखिए, एक साइड से ब्लैक कलर है। देखिए, अगर आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दूसरे साइड से ब्लैक कलर है। ओके, क्योंकि लूम पे बंद है। और इसमें हमारे एक वर्कशॉप है, उसमें कानी ही बंद है, वो थोड़ा सा इधर से हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। वो इसमें अभी ये काम खत्म हुआ है, ये तानी बानी खत्म हुआ है। सर जैसे जो पश्मीना है, हमने स्टार्टिंग से सुना है कि पश्मीना शॉल होती है, बट अभी हमने कुछ नया सुना कि पश्मीना कानी, तो उससे क्या मतलब है? मतलब हमें तो सिर्फ पश्मीना ही पता था। कानी है ना, वो मैंने अभी आपको जो दिखाया, कानी है एक टेक्निक का नाम है। कानी मतलब तीलियों से बनता है जी। कानी तीलियों से बनता है, जैसे कि एक कानी है,
ओके सर सर जैसा मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो रियल पश्मीना होता है वो एक रिंग से पास हो जाता है, एक रिंग से। तो मुझे ये पूछना था कि वो बस एक सेलिंग टैक्टिक्स होते हैं कि बेचने के लिए करते हैं, या फिर सच में जो रियल पश्मीना है वो एक रिंग में से पास हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, रिंग में से अभी आपको ये एक्रिलिक का वो विस्कोस वगैरह वो भी पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वहाँ एक जमाने बहुत पुराने जमाने में वैसा था, ये वैसे पश्मीना निकलता, अभी भी रिंग से निकलेगा पश्मीना। मगर तब उस जमाने में केमिकल्स वगैरह नहीं थे। आजकल क्या होता है, कपड़े में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल होता है, उससे कपड़ा सॉफ्ट होता है। कोई सा भी कपड़ा रिंग में निकलेगा, कॉटन में निकल सकता है, अगर उसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए वो भी निकलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी तो वूल वगैरह भी है इसमें रिंग में से पास होता है, वो तो बस एक सेलिंग टेक्निक है बस, और कुछ नहीं है। जब पूरा एक दिन होता है तो उसमें आप कितना टाइम जो है वीविंग को देते हैं? और हम तो पूरा दिन यही काम करते हैं। पूरा दिन नहीं करते हैं, तो उसमें से कितना वीव कर लेते हैं आप? मतलब ये डिपेंड होता है, जैसे कि अगर प्लेन हो गया, प्लेन में तो ज्यादा वीव करता है, अगर कानी हो गया, कानी में तो 1 इंच ज्यादा से ज्यादा बना पाता है। ओके, तो उसमें डिटेल सारी ज्यादा होती है और वॉक भी काफी तरह की यूज होती है। वीविंग में समय लगता है बनाने में, ये बड़ा कठिन काम है, टफेस्ट वीविंग दुनिया में मानी जाती है। होती है। इसकी क्या कॉस्ट होती होगी? ये डिपेंड अपॉन डिजाइन होता है। सपोज अगर एक स्टोल होगा बॉर्डर वाला, वो कम से कम 8,000 से स्टार्ट होता है। 8,000, 15,000, 20,000, 30,000, तो और होता है 60,000, 65,000 का शॉल होता है, कोई 1 लाख का भी होता है, डिपेंड होता है कैसा काम। मगर 10,000, 8,000 से कोई है नहीं, छोटा सा बॉर्डर बोलेंगे स्टोल। The most astonishing fact that we found was that since many years we have been knowing these shawls just by the name Pashmina. But when we got to interact with these artisans, we found that they were constantly using a term named Pashmina Kani weaving. What exactly is Kani? What does it mean? Why don't people know about this? After some research, we came to know that Kanis are small sticks of wood around which colorful webbed thread is woven to create a magical pattern over a shawl. Kanis are made of a forest wood called poshtu. However, it is also said that it's also a name of technique which is used in Pashmina weaving, as said by Mr. Majid Mir. It's a fact that around 75 to 100 bobbin threads are used at a single time to weave a Kani shawl with an overall design. The colorful patterns and motifs on these shawls usually reflect the beautiful flowers of the garden and surrounding natural elements from this dreamland of Kashmir. But the most common motif that we see on these shawls are the flowers called booty, which consist of a single flower motif, while the buta consists of a multiple flower motif. Well, apart from all this, what we need to know is that this art also saw a major downfall. As we know, Pashminas were considered as a fashion statement in European countries in 18th and 19th century, as every member of the royal family had to compulsorily purchase at least one piece of Pashmina as a tradition, but were too costly. Europeans found an option for this and started constructing machines that would replicate this process of weaving and started to sell those at cheaper prices in the name of Kashmiri shawls, which look exactly as Pashmina shawls. But by this time, traditional weavers suffered a lot as industrialization directly put an impact on the handcrafted works, and I guess they still go through these issues. Let's hear more about this from Mr. Majid Mir. अभी फिलहाल अभी पेंडेमिक शुरू है और आप तो मेन सिटी में रह रहे हैं, श्रीनगर में, तो कुछ इफेक्ट आपके काम पे इस पेंडेमिक के वजह से? हाँ, बिल्कुल पिछले 1 साल से तो हमारा मतलब व्यूअर्स इतना सफर कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा वो कितना सफर कर रहे हैं, क्योंकि काम वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल जिंदगी एक रुक सी गई है। सर, आपके जैसे श्रीनगर में कितने फैमिलीज हो गए टोटल जो इस काम में
श्रीनगर में तो बहुत सारी फैमिलीज है, मगर जो सबसे पुरानी फैमिलीज तो कम ही है। ज्यादातर मतलब 10 या 12 फैमिली ज्यादा से ज्यादा होंगी, है तो हजारों वीवर है यहाँ पे श्रीनगर में, हजारों ये तो सर सब मतलब अभी पेंडेमिक के वजह से हर किसी को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों क्या। ने काम छोड़ भी दिया। अब हम लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अच्छा। मतलब हमारे ग्रैंडफादर भी करते, उनके फादर भी, हमारा तो एक पुश्तैनी काम है। हम लोग को तो इस काम के बगैर कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना कोई काम आता है हमको इस काम में। बहुत सारे व्यूअर जो उनको बहुत सारे काम भी आते हैं, वो दूसरा काम। हमारे पास और कोई काम है ही नहीं, बस हम लोग यही एक काम कर रहे हैं। ओके, सो आप सर पूरा आपका टाइम आप इसी काम को देते हैं और इसी पे आप फिलहाल हमारा कोई एक ऑप्शन सरवाइव कर रहे हैं? हमारा कोई ऑप्शन है भी नहीं, हम बस यही कर रहे हैं, या तो वीव कर रहे हैं, या तो कुछ बना रहे हैं, या तो कुछ अपने नए डिजाइन बना रहे हैं। अब जो कोई क्लाइंट है वही ले रहा है। मगर अभी इस जब से पैंडेमिक हुआ तब से तो बहुत हालात खराब ही है, क्योंकि इसकी लेबर ज्यादा है। जैसे कि हमने ये अभी मैंने शॉल इसमें दिखाया था आपको, उस पर 7 महीने लगे शॉल बनाने में। अब देखिए अब 7 महीने का जो लेबर चढ़ता है, और इसका वीवर जो है अभी वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 500 रुपए कमाता है, जो कानी शॉल वीवर है। अगर आपको कुछ आपकी तरफ से लगता है कि अगर एक कम्युनिटी हो या सारे लोग एक साथ आकर वीविंग की इम्पोर्टेंस लोग पहचान सके, ऐसे नहीं कि पश्मीना ही बाकी भी वीविंग हो, तो इसकी इम्पोर्टेंस पहचान के आपको क्या लगता है कि लोग एक साथ आके कैसे बचा सकते हैं इस क्राफ्ट को? क्यों नहीं बचा सकते। मैं आपको एक चीज मतलब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में 130 से ज्यादा वीविंग्स होती थी। 130 किस्म की, मतलब 130 डिफरेंट वीविंग्स होती थी, जैसे कॉटन वीविंग और भी सिल्क में। और जैसे कि हमारे पश्मीना में ही 25 से ज्यादा वीविंग्स होती, वो सारे धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि लोगों का उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, या मतलब लोगों को समझ नहीं आया। तो एक चीज है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हो, ऐसी मतलब हैंड और मशीन में बहुत सारा फर्क है। अब धीरे धीरे लोग इसके ओर आ रहे हैं। बहुत सारे यूरोप वगैरह में क्या कर रहे हैं अभी, वो भी हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वो खाने पीने का सामान भी, वो भी वैसा भी वो बोलते हैं हम आर्टिफिशियल वगैरह नहीं खाएंगे, हम तो पूरा यही मतलब जो भी शुद्ध हो, जो प्योर। वैसे अब इसमें भी बहुत सारे पैंडेमिक से पहले हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए थे यूरोप वगैरह से। उन्होंने हमको बोला था हमको बस जो ओरिजिनल हो, जो हैंडमेड हो, क्योंकि इसमें मैम इसमें कोई नेचर का कोई हार्म नहीं होता है। जो भी हम ये वीविंग्स वगैरह करते हैं बिल्कुल शुद्ध होता है, ना तो इसमें कोई आपको ये मतलब कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ना कुछ होगा। जैसे कि अभी दुनिया तो बहुत तेज है, जैसे मशीन पे बहुत सारे ऐसे चीज बन, उसमें मतलब ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो बड़े हार्मफुल होते हैं इंसान के लिए, और वो नेचर के लिए भी हार्मफुल होते हैं। जैसे किसी जगह इंडस्ट्री लगाए, कुछ लगे, उसमें जो वेस्टेज वगैरह निकलते हैं, और वो हार्मफुल ही होता है। उसका समय के बाद उसका रिजल्ट बड़ा खराब ही होता है। अभी हम जो है, जैसे मैं हूँ या निश्चल है, अभी सीख रहे हैं, तो हम आगे आपके साथ अगर काम करना चाह रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल टेक्निक सीखना चाहते हैं या कोई ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऊपर लाना चाहते हैं, तो एज अ ट्रेडिशनल वीवर आपको क्या लगता है हम कैसे ला सकते हैं उसे ऊपर? क्यों नहीं, आप इसमें अगर आप देखोगे अभी फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अभी पहले फेरन बनता था, पश्मीने के फेरन। तो अभी हमने कुछ साल पहले ऋतु कुमार का अपने नाम से उनके साथ एक नया एक रिवाइव किया था, उसमें जरी लगा था, उसका बेस जो फैब्रिक था वो पश्मीना था। उनका बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्ड मिला था, और आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और अभी हमारे एक डिजाइनर आए थे, उन्होंने इसकी टाई बनाई, पश्मीना की टाई। ऐसे मतलब अपना इसमें ये आप इसमें एक नया इन्वेंशन ला सकते हैं, और आप पुराना कुछ रिवाइव कर सकते हैं। पहले जमाने में इसमें कोट जैकेट्स वगैरह बनते हैं, अभी बहुत सारे नए डिजाइन जो आए हैं, उन्होंने इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी चेंज लाई है, तो एक नया किस्म का एक प्रोडक्ट डेवलप किया है।
और रेस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा मिल रहा है। Well, it's time for us to support these artisans in any form because as they need us, the country needs them as well. They are the one who have preserved our rich tradition for many generations now. But how can we help them? Well, young professionals and students in this designing field can work with them and help them survive in this profession by letting them understand new trends in design, colors, contemporary context and many more. While art lovers and art collectors can contribute by purchasing their creation and help them go through this rough pandemic times. Every small step can help us save our tradition, and Kathik would be happy to serve you all. You can DM us to know all details for contribution or in case if you wish to purchase their products. We all hope for better days to come back soon. That's all for today. Let's meet again with a new episode and with another fabulous art of our roots. Stay tuned, stay connected.